Hello everyone. In this video, we are going to learn about the metaphysical school of poetry. Now, what is metaphysical? The term itself means the thing, the imagination beyond the physical world. Metaphysical means beyond the physical world. So, these are the poets that think beyond the physical world. They always think the things which we can't imagine. These are the things they thought, and they are the main metaphysical poets. It is actually started after the 17th century, and it is started with the John Donne's poetry. Then we have Andrew Marvell, Spenser, and there are lots of them. But I just remember my favorite one, and that's Andrew Marvell, John Donne. These are my favorite one as we consider the metaphysical poets. Now, let me discuss three main features. There are three main features of metaphysical poetry. And what was that? Metaphysical poetry has the most, first of all, there's opening. They have abrupt opening. Abrupt opening. What does it mean? That the poem starts with a subtle thought. Just like if we take a poem of Andrew Marvell, what's in the line we have? Had we have enough time, then this coyness lady is of no crime. Another example, we can take a poem of John Donne. Stop here and let me love. Now such kinds of openings are called abrupt opening. The first important thing of the metaphysical poetry is their opening is abrupt. एकदम से open हो जाती है. जो poem है एकदम से शुरू हो जाती है. So first main feature is abrupt opening. Now second main feature is metaphysical conceit. What's the conceit? Conceit is a startling comparison between two unlike things. एक चौंका देने वाली बेमेल तुलना. कोई दो बिल्कुल अलग चीजों में जो एक चीज उनमें सेम हो, उस चीज को कंपैरिजन करना. ठीक है, उस चीज से तुलना करना. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जॉन डन, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज द नेम ऑफ द पोएम. और वहां पे जो है वो पोएट इमेजिन करता है कि जो दो लवर्स जो अपार्ट हो रहे हैं, है ना, वो मॉर्न कर रहे हैं. तो अपार्ट होते समय जो लवर है अपनी बिलाविड से कहता है कि वी आर जस्ट द टू लेग्स ऑफ कंपास. कंपास होता है ना, कंपास के जो दो लेग्स होते हैं उनसे कंपेयर किया गया है लवर्स ने एक दूसरे को. क्या होता है, जैसे ही कंपास होता है ऐसे घूमकर कहीं पर भी जाए लेकिन वो वापस अपनी जगह पर ही आता है. तो उसी तरह से जो लवर है अपने बिलाविड से कहता है कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, इसके लिए मॉर्न नहीं करने की जरूरत है. मैं कहीं पे भी जाऊँ लेकिन मैं आखिर में तुम्हारे पास ही आऊंगा. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ. एक और इमेजिनेशन है, फ्ली एक पोएम थी. उसमें जो पोएट है वो इमेजिन करता है कि एक फ्ली, एक मच्छर है जो वो मच्छर के अंदर वो मुझे भी काटता है और अपनी प्रेमिका को कहता है कि वो तुम्हें भी काटता है. तो अगर वो मच्छर हम दोनों को काटता है तो इसका मतलब है हम दोनों एक हो गए हैं. हम दोनों ने बिना शादी किए ही हमने वो सब कर लिया है. इसका मतलब कि हम दोनों का खून अगर उस मच्छर के अंदर है, उस फ्ली के अंदर है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों ने वो सब कुछ हम कर चुके हैं जो करने से तुम मुझे मना कर रही हो. तो मतलब इस तरह की ऐसी कंपैरिजन होती है, इनको कहते हैं मेटाफिजिकल कंसीट. ठीक है. एक और है जो उनकी जो लैंग्वेज है, मेटाफिजिकल पोइट्स की जो लैंग्वेज है वो कोलॉकियल लैंग्वेज यूज करते थे. कोलॉकियल लैंग्वेज मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो हम बोलने की भाषा में जो यूज करते हैं, आम तौर पे जो बोली जाती है भाषा, वही भाषा वो यूज करते थे. ठीक है. और इन मेटाफिजिकल पोइट्स को अपनी जो लर्निंग है वो दुनिया को बताने में बहुत अच्छा लगता था कि वो बस वो चाहते थे अपना विट्टीनेस शो करना. ठीक है. तो ये चार मेन थिंग्स थी जो मैं मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में आपसे शेयर करना चाहती थी. क्या थी वो? abrupt opening, metaphysical conceit, and colloquial language, and they just always show us their wittiness. Okay, they demonstrate to us the wittiness. Now let me share some of my notes with you, and I just want to
you to subscribe my channel so that I'm always be ready to help you out, students. Have a nice day. So now let me share with you some of my thoughts, my very brief notes which I have prepared. Let's go. These are the notes. Metaphysical. Meta means beyond, परे होना. फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर. तो जो फिजिकल नेचर होता है लोगों का, इंसानों का, उससे हट के सोचना होता है मेटाफिजिकल पोइट्री. तो आप मेटाफिजिकल पोइट्री जब स्टार्ट करेंगे तो आप फर्स्ट लाइन आपकी यही होनी चाहिए, इट मीन्स द पोइट्री बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड. Second point, metaphysical poetry means that goes beyond the physical world of the sense and explore the spiritual world. हमारे सेंसेस से भी बहुत ऊपर, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, वो जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उससे भी बहुत ऊपर की सोच रखते थे ये मेटाफिजिकल पोइट्स. नेक्स्ट पॉइंट, पोइट्री रेफर्स टू अ टाइप ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल पोइट्री. जो पोइट्री है बहुत इंटेलेक्चुअल मीन्स बहुत समझदार लोग होते थे जो जिन्होंने ये पोइट्री लिखी. उनके जो एग्जाम्पल्स होते थे, जो उनकी लैंग्वेज होती थी, एवरीथिंग शुड बी लाइक दिस, कि बहुत इंटेलिजेंट थे वो, इंटेलेक्चुअल्स थे. इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री डीलिंग विद द एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल सब्जेक्ट. एब्स्ट्रैक्ट जो हम सोच भी नहीं सकते, और जो फिलोसफिकल मतलब जो ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं ना, ऐसे सब्जेक्ट्स पे लिखते थे. और उनमें ये भी इंक्लूड होते थे रिलीजन, गॉड को लेकर पोएम्स लिखी जाती थी, ब्यूटी, एक लेडी की ब्यूटी, किसी चीज़ की ब्यूटी को लेकर पोएम लिखी जाती थी, फेथ, इंसान के विश्वास को लेकर पोएम्स लिखी जाती थी. ठीक है, इस पोएम का जो मैंने आपको अपने वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि मेन फीचर यही होता था कि ये जो है इसकी ओपनिंग एब्रप्ट होती थी. ये आप तो लर्न ही कर लो, एब्रप्ट ओपनिंग, मेटाफिजिकल कंसीट मीन्स द स्टार्टलिंग कंपैरिजन बिटवीन 2 अनलाइक थिंग्स. ठीक है, 2 अलग अलग चीज़ों के बीच में एक लाइकनेस ढूंढना. ठीक है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत, द पोएट्स वर इंटेलेक्चुअल्स, और लैंग्वेज कोलॉकियल होती थी, जो हमारी बोलचाल में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं ऐसी ही लैंग्वेज होती थी. ठीक है, दिस इज़ ऑल द थिंग. मेनली तो लव पोएम्स लिखी जाती थी, और मेन इसके पोएट हैं जॉन डन, एंड्रयू मार्वल. ओके, नाउ turning to the short note, in the 17th century the term metaphysical poetry was first used as a contemporary द पोइट्री ऑफ जॉन डन, अब्राहम कोवली एंड एंड्रयू मार्वल. तो ये जब इन लोगों ने जब पोएम लिखनी शुरू की तो इनकी पोएम्स जो थी वो पुरानी जो पोएम चल रही थी उससे थोड़ा सा अलग ट्रेंड था. ठीक है, तो इनको टर्म दिया गया, नाम दिया गया मेटाफिजिकल पोइट्स. नाम तो बाद में दिया गया, ठीक है, जब उनकी पोएम्स पढ़ी गई. नेक्स्ट, डॉक्टर सैम्यूअल जॉनसन ने उनको मेटाफिजिकल कहा कि दे आर बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड. नेक्स्ट point we have their wish. Now poets चाहते थे, they was to say that what they hoped had never been said before. metaphysical poets हमेशा ये चाहते थे कि वो कुछ ऐसी बात कहे जो अभी तक किसी ने नहीं कही है. they enjoyed in the display of wit. वो अपनी विट मतलब अपनी समझदारी को दिखाना चाहते थे लोगों को. फार फेस्ट इमेजेस, जो इमेजेस होती थी, इमेजेस में जो सोचते थे वो, है ना, कंपेयर करते थे या किसी की सुंदरता को बताते थे, तो उसकी जो इमेज वो लेकर आते थे. हम उस पोएम के वर्ड्स को पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में वो इमेजेस चलने लग जाती थी. ठीक है, नेक्स्ट, हाइपरबली मीन्स बहुत बड़ा चढ़ा के भी कई बार बोल दी जाती थी बातें जो मतलब हजम भी नहीं होती. ठीक है, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना कुछ. कंसीट मैं बता चुकी हूँ, अनलाइक चीज़ों के बीच में कंपेयर करना. ठीक है, metaphysical poets wrote love poems that exhibit their cynical attitude towards fair sex. कई बार पोएम्स जो थी उनमें साइनिकल एटीट्यूड होता था. साइनिकल मतलब बहुत कट्टर होते थे अपनी चीज़ों को लेकर, और उनमें उनके सब्जेक्ट्स हुआ करते थे पोएम के फेयर सेक्स, जॉय ऑफ कॉन्जुगल लव. कॉन्जुगल मीन्स मैरिज, है ना, मैरिज वाला जो लव होता है उसके जो खुशियाँ होती है, जो उसके गम होते हैं, वो सब. प्लेटोनिक लव. ना प्लेटोनिक लव क्या होता है? प्लेटोनिक लव मीन्स ऐसा लव जहाँ पे जिस लव में एक दूसरे से मिलते नहीं है ना, टच भी नहीं करते एक दूसरे को, वो लव होता है प्लेटोनिक लव, जो दिल से होता है ना, मतलब इश्क वाला लव, प्लेटोनिक. Next, in the 20th century, T.S. Eliot revived metaphysical poetry by calling it
fruit of passionate thinking. Yes, that's it. T.S. एलियट कहते थे कि मेटाफिजिकल जो पोइट्री है वो एक फ्रूट है पैशनेट थिंकिंग का, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उसका जो फ्रूट निकलता है ना, वो है मेटाफिजिकल पोइट्री. नेक्स्ट, T.S. Eliot wrote, a thought or two done was an experience. अगर हम डन के बारे में सोचें तो ऐसा लगता है कि वो बहुत एक्सपीरियंस था. सो a thought of done was an experience and admired their talent. और एलियट ने उनके टैलेंट को, उनके पोइट्स के टैलेंट को एडमायर किया, उनको अप्रिशिएट किया बोलकर, द फिगर ऑफ स्पीच इज एलेबोरेटेड टू द फार्देस्ट स्टेज ऑफ विच ingenuity कैन कैरी इट इन अ मेटाफिजिकल पोइट्स. ओके, अब मैं आपको कुछ ऐसी इमेजेस आपको बताना चाहती हूँ जो मेन पोइट्स थे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के. ठीक है, ये सारे हैं जॉन डन, अब्राहम कोहली, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मार्वल, एंड्रयू मार्वल.